Hello students, uh, this is the second lecture of class 11th, most important and first chapter, some basic concept of chemistry. In the previous lecture, we have seen the different gas laws and the introduction to this chapter. And now we are going to discuss in this lecture about the Dalton's atomic theory. Students, Dalton was the individual who first coined the term atom. Okay. And he has given the term atom from the Greek term atomio, which means indivisible, right? Something which cannot be divided. So according to Dalton, if we keep on breaking something, right? Keep on breaking and keep on breaking, then the smallest particle, जिसको आप further divide नहीं कर पाएंगे, जिसको आप further तोड़ नहीं पाएंगे, तो that is called atom. And यहाँ पर अगर हम लोग देखें, so these are the few basic postulates of Dalton's atomic theory, which were given in the year 1808. First, matter consists of indivisible atoms. All the atoms of a given element have different identical properties, including identical mass. Atoms of different elements differ in mass, etc. Third is compounds are formed when atoms of different element combine in a fixed ratio. Compound बनते हैं जब different elements के atoms एक fixed ratio में combine होता है. This also we have seen. And next is chemical reactions involved reorganization of atom. किसी भी chemical reaction में breaking of old bond and formation of new bond ही तो होता है to form the new compound, right? Now, so these are the few basic postulates of the Dalton's atomic theory. Keep this thing in brain. Let repeat with me. Just matter consists of indivisible atoms. All the atoms consist of indivisible. All the atoms of a given element have identical properties, including identical mass. Atom of different elements differ in mass, right? And same element is same. Other thing is compounds are formed when atoms of different element are combined in fixed ratio. जैसे कल हमने आपको law of constant proportion बताया था. And then chemical reactions involved in the reorganization of atoms. These are neither created nor destroyed in a chemical reaction. किसी एक particular chemical reaction में ना ही atoms बनते हैं और ना ही atoms destroy होते हैं. सिर्फ reorganization of atoms होता है. हम लोग जरा बात करेंगे डिटेल में एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास के बारे में. एटम एंड मॉलिक्यूल कम से कम आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. एटम क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम व्हिच कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, ऑफ एन एलिमेंट व्हिच कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली. ऑन द अदर हैंड मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो फ्री एग्जिस्ट कर सकता है, जिसका एग्जिस्टेंस फ्री पॉसिबल है. ओके, सो नाउ लेट्स सी एंड मूव फर्दर, राइट. अगर हम बात करें एटॉमिक मासेस की, तो स्टूडेंट्स द मास ऑफ वन एटम इज कॉल्ड द एटॉमिक मास, राइट. एक एटम का जो पर्टिकुलर मास है उसे हम एटॉमिक मास कहते हैं. मेजर करने के लिए यूनिट एएमयू है, एटॉमिक मास यूनिट. एंड सी मैं कुछ एलिमेंट्स के लिए आपको एटॉमिक मास नंबर बता देता हूँ, आप लर्न कर लीजिए उन्हें, वही बेटर है. फॉर एग्जाम्पल, mass number for hydrogen is 1, for helium it is 4, for lithium it is 7, for beryllium it is 9, for boron 11, for carbon mass number atomic number is 12, for nitrogen it is 14, oxygen 16, fluorine 19, neon 20, sodium 23, magnesium 24, aluminium 27, silicon 28, phosphorus 31, sulfur
32, chlorine 35.5, argon 40, potassium 39, and calcium 40, right? So this अगर आपसे कोई पूछे एक एटम का मास क्या है, what is the mass of one atom of hydrogen, so it is 1 AMU, right? What is the unit here? AMU, atomic mass unit, या फिर इसी को ऑब्लिक करके U लिख सकते हैं आप, unified mass, okay? 4 AMU is the mass of one helium atom, 7 AMU is the mass of one lithium atom, okay? This was all about the atomic mass. अब अगर हम बात करें molecular mass की, तो बेटा molecular mass निकाला जाता है atomic masses का sum करके. For example, आपके पास ग्लूकोज है C6H12O6, ओके, इसका molecular mass आपको पता करना है. तो कार्बन के कितने एटम है इसमें? 6. कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है? 12 into 6 प्लस हाइड्रोजन का कितना एटम है? 12. एक एटम का मास कितना होता है? 1. इट मींस 1 into 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना एटम है? 6. एक एटम का मास कितना होता है? 16. 16 into 6. Now when we go for the total, then 12 6 are 72. Anubhav Maheshwari, please keep your pen down. Then 12 ones are 12 plus 16 6 are 96. The total is going to be here 180 AMU. 180 AMU. This is the molecular mass of glucose. Okay. अगर आपसे कोई मोलर मास पूछता है, मोलर का मतलब होता है 1 मोल, तो 1 मोल ग्लूकोज का मास कितना होगा? बेटा आप एटॉमिक मास, मोलेकुलर मास या एटॉमिक मास को ही जब मोलर मास में कन्वर्ट करेंगे तो उसको किलोग्राम ग्राम में डिनोट कर दीजिए. फॉर एग्जांपल 180 ग्राम पर मोल, राइट? 1 मोल सैंपल ऑफ ग्लूकोज का मास कितना होगा? 180 ग्राम. इतना बात क्लियर हो रहा है आप लोगों को? सो फ्रॉम हेयर आई थिंक कि हम लोग क्लियर हो गए हैं अपना एटॉमिक मास एंड मोलेकुलर मास के कॉन्सेप्ट से. अब बात आती है एवरेज एटॉमिक मास की. तो एवरेज एटॉमिक मास में आप क्लोरीन वाली स्टोरी सुन चुके हैं. होता क्या है कि एक से ज्यादा आइसोटोप्स अवेलेबल होते हैं. लेट मी एक्सप्लेन इट हियर. फाइन. सो नाउ लेट्स सी बेटा, हो क्या रहा है कि आपका एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? लाइक आपके पास क्लोरीन का एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है. क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, यानी क्लोरीन के 2 आइसोटोप अवेलेबल हैं, एक जिसका मास 35 होता है और दूसरा जिसका मास नंबर 38 होता है, राइट? सॉरी 37 होता है. नाउ व्हाट टू बी ऑब्जर्व कि नेचर में अगर आप देखें तो जो 35 वाला सैंपल है, ये इसकी अबेंडेंस, इसकी नेचुरल अबेंडेंस 75% है और 35 वाले सैंपल की अबेंडेंस 25% है, राइट? सो फ्रॉम हेयर हम देख सकते हैं कि जब आपको एवरेज निकालना है 75 into 35 plus 25 into 37 अपॉन 100 कर दीजिए. 25 आप कॉमन ले लेंगे, कैंसिल हो जाएगा. द रिजल्ट विल बी 35.5. दिस इज द प्राइम रीजन व्हाई वी आर हैविंग द क्लोरीन्स मास इज 35.5 AMU. बात समझ में आ रही है? सो एवरेज एटॉमिक मास मतलब जब भी एटॉमिक मास हम लोग निकालेंगे, एवरेज एटॉमिक मास का फंडा आता है जब आपको आइसोटोप एक से ज्यादा पता होते हैं. और लिटरली स्पीकिंग तो लगभग हर एलिमेंट के आइसोटोप्स अवेलेबल हैं. ओके, तो आप ज्यादातर मासेस में देखेंगे कि बहुत ज्यादा डेसिमल में जाकर के वो 4 से 5 डिजिट 6 डिजिट तक पीरियोडिक टेबल्स में दिया होता है एक्यूरेट करके. आप उसको जनरल राउंड ऑफ करके 2 डिजिट या 1 डिजिट में ले लीजिए, दैट इज इट. ठीक है. अच्छा, अब मैं आगे चलता हूँ जरा.
Average atomic mass, molecular mass, it is clear. Formula mass is nothing but molecular mass. सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स के लिए हम उसे फॉर्मूला मास बोल देते हैं, राइट. फॉर एग्जांपल NaCl का आपको निकालना है तो हम टर्म एटॉमिक मास नहीं यूज करेंगे, तो हम टर्म मोलिकुलर मास यूज करेंगे, ठीक है. फॉर एग्जांपल हियर वी आर हैविंग NaCl, आई एम सॉरी, फॉर्मूला मास यूज करेंगे, मोलिकुलर मास नहीं यूज करेंगे. NaCl सोडियम आपका 23 है और आपका क्लोरीन 35.5 है. आप इन दोनों का सम कर दीजिए, the result is going to be 58.5. okay, 58.5 AMU. okay, चलिए आगे चलते हैं. कुछ सैंपल क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हैं, राइट. फॉर्मूला मास का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया. मोल कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, और इस पे डिस्कशन हमें करना बनता ही है. ओके, मोल कॉन्सेप्ट. अच्छा, मोल कॉन्सेप्ट क्या है? मैं इसको जरा व्हाइट बोर्ड में आकर के समझाऊंगा आपको. जस्ट वेट अ मिनट. स्टूडेंट्स, नया पैटर्न आप लोगों ने देख ही लिया है CBSE का, ठीक है. अब 2 बार एग्जाम होंगे, ऑब्जेक्टिव की इंपॉर्टेंस लगातार बढ़ाई जा रही है. ओके, और ऑब्जेक्टिव का मतलब कि लाइन बाय लाइन NCERT आपको कायदे से प्रिपेयर होनी चाहिए. NCERT की डिकोडिंग जैसे हम लोग करते हैं ऐसे ही अब आपको करनी है. अब कोई शॉर्टकट से काम चलेगा नहीं, ठीक है. तो अपना इंपॉर्टेंट, अगर कोई व्यक्ति आपको इंपॉर्टेंट बताता है तो उसको अपनी पॉकेट में रखिए. फाइन. ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पे वापस से आते हैं. मोल कॉन्सेप्ट देखिए बहुत आसान और बहुत डिफिकल्ट, मतलब सीधा सा फंडा ये है, समझ में आने और ना आने की कहानी है ये. मोल कॉन्सेप्ट एक बार ध्यान से समझ लीजिए, जीवन में कहीं दोबारा नहीं समझना पड़ेगा. कोई बड़ा हवा नहीं है मोल कॉन्सेप्ट, कोई यूनिक चीज नहीं है मोल कॉन्सेप्ट. इट इज सिंपली द collection of a group of numbers, right? A collection of certain number of things. For example, आपको डजन का कॉन्सेप्ट से मैं उठा करके चलता हूँ. जैसे डजन है, आपको पढ़ाया जाता है बचपन से, आप सभी जानते हैं कि 1 डजन इज इक्वल टू 12 आइटम्स. अब ये मैटर नहीं करता कि सिर्फ केले ही होंगे. 1 डजन का मतलब 12 बनानास हो सकते हैं. 1 डजन एप्पल मतलब 12 एप्पल्स. 1 डजन स्टूडेंट्स मतलब 12 स्टूडेंट्स. 1 डजन स्कूल्स मतलब 12 स्कूल्स. 1 डजन टीचर्स मतलब 12 टीचर्स. दैट इज इट, राइट. इसी तरीके से आता है ग्रॉस. 1 ग्रॉस इज इक्वल टू 12 डजन, राइट. 1 ग्रॉस इज इक्वल टू 12 डजन, दैट इज 144 आइटम्स. 144 आइटम्स. ओके. अच्छा, हमारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इतनी छोटी एंटाइटीज हैं, इतनी छोटी क्वांटिटीज हैं कि इनको मेजर करने के लिए नंबर बहुत हैवी होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए. तो 1 मोल इज एक्चुअली अ वेरी बिग नंबर. 1 mole is a collection of very big number. What is 1 mole? 1 mole is a collection of 6.022 into 10 to the power 23 items. बात क्लियर हो रही है? So 1 mole is a collection of 6.022 into 10 to the power 23 items. Okay? ये 1 mole atom है तो 6.022 into 10 to the power 23 items. 1 mole molecule का मतलब इतने molecules. 1 mole ions का मतलब इतने ions. Okay, this is it. So 1 मोल को अब हम एटॉमिक मास से कैसे रिलेट करें? जो भी एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास आपने AMU में निकाला है, ओके, वो एक एटम का होता है या एक मॉलिक्यूल का होता है. जब आप एक मोल मॉलिक्यूल के लिए निकालेंगे तो उसी वाले मास को जो आपने AMU में कैलकुलेट किया है बेटा, उसको ग्राम में लिख दीजिए, राइट. उसको आप ग्राम में लिख दीजिए. फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन के एक एटम का मास है 1 AMU और 1 मोल एटम्स का मास है 1 ग्राम. 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन is equal to 1 AMU. 1 mole of हाइड्रोजन एटम्स, इनका मास है 1 ग्राम. ठीक है, तो उसको आप जैसे ग्लूकोज का भी हमने निकाला था, मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज C6H12O6 was 180 AMU. और अगर हम 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज यानी 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज की बात करें
तो उनका मास होगा 180 ग्राम। बात क्लियर हो गई है? दिस इज मोल कॉन्सेप्ट, इसके अलावा और कुछ इसमें विशेष होने वाला नहीं है। अब आप लोग मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसके बाद की बात आती है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। देखिए सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन के, राइट? कि किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस में या किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में या किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें वाटर, हमारे पास वाटर है, वाटर में H2O, राइट? H2O, H2O यानी HOH, हाइड्रोजन का 1 mu और ऑक्सीजन का 16 mu, इन तीनों को ऐड कर दें तो ये टोटल होता है हमारा 18 mu, राइट? 18 AMU। 18 mu इज द मॉलिक्यूलर मास फॉर वाटर। अब 18 mu जो वाटर का मॉलिक्यूलर मास है, इसमें आप हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो किसी भी एलिमेंट का जिसका आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जांपल परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू mass of hydrogen in the compound upon total mass into 100, right? For example यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर mass of hydrogen 2 ग्राम upon total 18 into 100, यानी 100 upon 9, ये 11 पॉइंट समथिंग करके आएगा, ठीक है? 11.1 समथिंग परसेंटेज। और ऑक्सीजन के लिए जब निकालना होगा तो 16 अपॉन 18 इंटू 100 कर देंगे, वो 89 पॉइंट समथिंग करके आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है? तो दिस इज ऑल अबाउट परसेंटेज कंपोजिशन। बशर्ते आपको थोड़े से न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में लगाने पड़ेंगे प्रैक्टिस के लिए, जिससे कि आप इसको ठीक से प्रिपेयर कर सकें। ये सारे एग्जांपल्स बेटा लगाने के लिए हैं आपके, और आपको करने चाहिए। हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज आती है, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला स्टूडेंट्स किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी कंपाउंड का वो फॉर्मूला होता है जिसमें हमने एलिमेंट्स को सिंपलेस्ट रेशियो में लिखा होता है, राइट? फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्लूकोज है C6H12O6। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या दिखाता है कि इसके एक मॉलिक्यूल में 6 ग्लूकोज के एटम है, 12 हाइड्रोजन के एटम है और 6 ऑक्सीजन के एटम है। मगर जब हम लोग इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो एम्पिरिकल फॉर्मूला का मतलब है हम सिंपलेस्ट रेशियो लिख लेंगे, 6 1 जा 6 2 जा और फिर 6 1 जा यानी 6CH2O, दैट इज इट। ओके, ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। बात समझ आ रही है? दिस इज इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में आप लोग अंतर समझ गए हैं। सिंपलेस्ट रेशियो वाला एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। कई बार क्वेश्चन आते हैं सिंपल एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एम्पिरिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लीजिए। तो उसके लिए सिंपल आपको रेशियो पता होना चाहिए, उसको कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। ये न्यूमेरिकल जो आपका दिया हुआ है, दिस न्यूमेरिकल टोटली डिपेंड्स अपॉन द कन्वर्जन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एम्पिरिकल फॉर्मूला। काफी इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं इस पे बेस्ड, right? Now we are having stoichiometry and stoichiometric calculations. What do you mean by stoichiometry? For example, आप देखें यहाँ पर ये रिएक्शन हमारे सामने दी हुई है, CH4 2O2 plus 2O2 gives CO2 plus H2O। अब यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं इसके साथ जब कुछ नहीं लिखा होता तो हम मान लेते हैं 1 है। ये जो इनकी बैलेंस रिएक्शन है बेटा, यहाँ पर नंबर्स लिखे होते हैं, these are called stoichiometric coefficients, okay? और जब कुछ नहीं लिखा है तो 1 है। इसका मतलब 1 mole of methane combines with 2 mole of oxygen to give 1 mole of carbon dioxide and 2 mole of water। अब अगर ये गैसेस हैं और STP पर हैं तो हम इनके वॉल्यूम से रिलेट कर सकते हैं गैलोज़ाक्स लॉ अप्लाई करते हुए। अदरवाइज हम इनको मास से, वॉल्यूम से, नंबर ऑफ मोल्स से, नंबर ऑफ एटम से, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, किसी भी तरीके से मोल कॉन्सेप्ट का नॉलेज अप्लाई करते हुए स्टोइकियोमेट्री, इस रिएक्शन से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, इस रिएक्शन से हमको की इंफॉर्मेशन मिल गई कि 1 मोल ऑफ मीथेन combines with 2 mole of oxygen to give 1 mole of carbon dioxide and 2 mole of water। अब हम चाहें तो इसको हम मास के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें कि 16 ग्राम ऑफ मीथेन combined with 32 to 64 gram of oxygen to give 44 gram of carbon dioxide and
18 2 36 ग्राम ऑफ वाटर, दैट इज इट, राइट। या फिर अगर ये STP पर है तो सारी गैसेस हैं, हम कहते हैं 22.4 लीटर ऑफ मीथेन कंबाइंस विद द 44.4 लीटर ऑफ 44.8 लीटर ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 22.4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 44.8 लीटर ऑफ वाटर, राइट। तो वॉल्यूम से आप रिलेट कर सकते हैं। एक बार स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन रिलेट करना, आप मास और वॉल्यूम से रिलेट कर सकते हैं, आप नंबर ऑफ एटम से रिलेट कर सकते हैं कि 6.022 into 10⁻23 यानी 1 mole of the molecules of methane combined with the 2 Na यानी 2 into 6.022 into 10⁻23 molecules of oxygen to give Na यानी 6.022 into 10⁻23 molecules of carbon dioxide and twice of that of molecules of water, right। तो इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी, यही स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस हैं। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन मुझे नहीं लगता कि अब आपको डिस्कस करने की जरूरत है, अगर जरूरत आप समझते भी हैं तो उसको हम लोग देख लेंगे रेडॉक्स रिएक्शन में। वहां पर मैंने हर तरीके की रिएक्शन आपको बैलेंस करना सिखाया हुआ है, मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़े हुए हैं, वहां से हम लोग देखेंगे। इसी चैप्टर में 11th की स्टडीज में आगे आएगा। लिमिटिंग रिएजेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंडा आता है, जरा समझिएगा। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? ये वो रिएजेंट होता है किसी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन का जो सबसे पहले खत्म हो जाता है और उसकी वजह से रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। मान लीजिए एक रिएक्शन है जिसमें A + B गिव्स C + D, ऐसी रिएक्शन है, राइट। इसका मतलब A moles of B combine A moles of A यानी 1 mole of A combined with 1 mole of B to give 1 mole of C and 1 mole of D, राइट। अब मान लीजिए हमने लिया 1 मोल A ले लिया, 0.52 मोल हमने B ले लिया, और तो होगा क्या कि जब 1 मोल के साथ कंबाइन होता है तो 0.2 मोल के साथ कंबाइन होगा। अब बशर्ते यहाँ पर A हमारा 0.8 मोल फालतू पड़ा रहेगा, दैट इज ओके, मगर वो रिएक्शन नहीं कर सकता। व्हाई? क्योंकि B खत्म हो गया है। जो रिएजेंट सबसे पहले खत्म हो जाता है उसकी वजह से रिएक्शन रुक जाती है, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पर हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा? B हो जाएगा, ओके। कई बार छोटे मोटे न्यूमेरिकल आ जाते हैं और आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट हियर। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं, राइट, 50 किलोग्राम of N2 and 10 kilogram of hydrogen are mixed to produce ammonia. Calculate the ammonia formed and identify the limiting reagent. तो इसमें आप पूरा कैलकुलेट करें और आपको पता चल जाएगा अपने आप से। यू कैन सी द सॉल्यूशन, यू कैन गो थ्रू इट, वेरी इजी। अच्छा, कुछ कंसंट्रेशन यूनिट्स की बात हमको आनी चाहिए क्योंकि हम लोग अब बड़े हो रहे हैं, क्लास 9th में है, 11th में है। रिएक्शन एंड सॉल्यूशन, राइट। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ा हुआ था। देखिए, एक मास परसेंटेज है। मास परसेंटेज का क्या मतलब होता है? मास ऑफ द कंपोनेंट सॉल्यूशन में जिसमें दो या दो से ज्यादा चीजें प्रेजेंट हैं, राइट। तो आप क्या करेंगे? मास ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ द सैंपल इनटू 100, राइट। ऐसे करके आप मास परसेंटेज की क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मास परसेंटेज के बाद हमारे पास मोल फ्रैक्शन आता है। मोल फ्रैक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपके लिए नया है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए हमारे पास एक सैंपल है जिसमें A + B + C 3 चीजें मिला करके हमने ये सैंपल बनाया, ठीक है, मिक्सचर बनाया। इसमें Na moles of A, Nb moles of B and Nc moles of C are present। तो क्या होगा? अगर हमें मोल फ्रैक्शन को काई से डिनोट करते हैं। ये x जैसा लगता है बट एक्चुअली इट इज अ ग्रीक अल्फाबेट जिसको काई बोलते हैं, ठीक है। सो काई ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यानी आपको जिस भी सैंपल का मोल फ्रैक्शन निकालना है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी सैंपल इन अ कंपोनेंट of any compound in a sample, yeah, of any component in a sample is given by the ratio of number of moles of that component upon total number of moles available in the mixture, right? So number of moles fraction of A is equal to number of mole of A plus upon number of mole of A plus number of mole of B plus number of mole of C। इसी तरीके से अगर आप सॉल्व करें तो मोल फ्रैक्शन फॉर B will be equal to मोल फ्रैक्शन of number of moles of B upon number of mole of A plus number of mole of B plus number of mole of C, ठीक है। अगर हम बात करें chi of C की, मोल फ्रैक्शन ऑफ C is equal to number of moles of C upon number of mole of A plus B plus C, right। अच्छा, एक बात और आपको समझ लेनी चाहिए कि किसी भी सॉल्यूशन में जब 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट प्रेजेंट हैं तो सारे कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शंस का सम 1 के इक्वल होगा, ना 1 से ज्यादा ना 1 से कम। दोनों केस में आपका सॉल्यूशन गलत है। यानी यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ C, ऑल दीज 3 इज इक्वल टू 1। बोलो कोई दिक्कत है? आई डोंट थिंक यू हैव एनी प्रॉब्लम।
और अगर फिर भी कोई डाउट है तो जो बच्चे ऑनलाइन इस क्लास को देख रहे हैं यूट्यूब पर, उनका स्वागत है, कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और जो मेरे डायरेक्ट टच में स्टूडेंट्स हैं वो कॉल करके या फिर मैसेज करके पूछ सकते हैं। मोल फ्रैक्शन के आगे हम लोग चलते हैं जरा। मोलैरिटी, व्हाट इज मोलैरिटी? बड़ा इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है बेटा मोलैरिटी। Molarity is defined as the number of moles of solute present per liter of solution, right? Number of mole of solute present per liter of solution. Molarity is equal to number of moles of solute, number of moles of solute upon volume of solution, और वो भी लीटर्स में, right? This is molarity. Now let's move on. मोलैलिटी की बात कर लेते हैं हम। मोलैलिटी क्या है? इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितना मोल ऑफ सोल्यूट आपने डाला हुआ है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओके एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, राइट? इस फॉर्मूला को अप्लाई करिए। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे उसके लिए मैं पहले पीछे बता चुका हूँ। नंबर ऑफ मोल्स का सिंपल सा फंडा है, किसी भी चीज का नंबर ऑफ मोल निकालने हैं तो जितना मास गिवन है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, और मोलर मास कैलकुलेट करना आपको मैं सिखा चुका हूँ, ठीक है? सो इजीली यू कैन डू इट नाउ। अब आप लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हमारा ये फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो गया है, राइट? अब आपको अगले लेक्चर के लिए क्या करना है? अगले लेक्चर के लिए मैं आपके डाउट्स लूंगा और उसमें चैप्टर 1 के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस आप लोग करके रखें, राइट? और जो भी डाउट होंगे वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।